Yes, good morning all. Mute your mic. Mute your mic. Nikunj. Okay, so in the last lecture we were discussing about the classless addresses. Any doubt in that? Classless or CIDR? I have discussed with you CIDR. Today we will discuss about subnetting and VLSM in CIDR. Okay, so let's start. Number one is subnetting in CIDR. Okay, CIDR is classless inter-domain routing. Classless inter-domain routing, right? So let's take one example. Suppose there is one network 40.30.10.20/25. Okay. So I want to divide this network into two subnets. I want to divide this network into two subnets. So first of all, tell me the range of IP addresses in this particular network. Tell me the range of IP addresses in this particular network. Yes, what is that? The IP address is 40.30.10.20/25. Can you tell me the number of hosts? The number of hosts that would present here? Number of hosts that could present here? The number of hosts that could present here? The host present here will be 32 minus 25. That means the host ID would contain 32 minus 25 is 7 bits. Okay, and the number of hosts would be 2 raised to the power 7, that is 2 raised to the power 7 minus 2, total number of hosts that we can connect. But the number of IP addresses that we can create is 2 raised to the power 27 is 128. Okay, now the question is, in order to create two subnet, I have to borrow bits from the host ID part. ओके और मुझे जब दो सबनेट क्रिएट करने हैं तो सीधी सी बात है मुझे एक बिट की रिक्वायरमेंट होगी because 2 raised to the power 1 is 2. Okay, I need 1 bit or I will borrow 1 bit from the host ID part. Okay, so for that part I will break this particular network into two halves. उसमें वो वाली बिट मैं कौन सी कर देता हूं 0 और बाकी बची कितने 6 बिट्स
1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर उस बिट को मैं कंसीडर कर लेता हूँ 1, ये फिक्स कर दिया मैंने फॉर दिस पर्टिकुलर रेंज ऑफ IP addresses 1 2 3 4 5 6. Okay, so I will put 0 in place of this 6 places one time to get the lowest address और फिर हाईएस्ट एड्रेस के लिए मैं यहाँ 1 पुट करूंगा. तो सीधी सी बात है 2 raised to the power 7 यानी कि 128 बन रहे हैं तो 64 और 64 एड्रेसेस जाएंगे यहाँ पर. So if I place 0 and all ones, तो 0 रखूंगा तो वैल्यू बनेगी क्या 40.30.10.20 0 first IP, second would be or last IP would be 40 30 10 dot all number of ones, that is 63. 6 number of ones is 63. तो पहली रेंज आ गई मेरे पास. सेकंड रेंज सीधी बात है 64 ही बनेगी 1 followed by 6 number of 0, so that is 40.30.10.64 और यहाँ पर जो लास्ट आईपी मेरा बनेगा 40.30.10.127. अब हम देखते हैं यहाँ पर सबनेट मास्क क्या होगा. व्हाट वुड बी द सबनेट मास्क. देखिए ओरिजिनली जो मेरा नेट मास्क था उसमें /25 था, है ना, यानी कि नेट आईडी में कितनी वैल्यूज थी 25 बिट्स. ओके, देन आई रिक्वायर 1 बिट फॉर द सबनेट आईडी. ओके, तो 25 प्लस 1 इज 26. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे /26/26/26/26. So this is how the subnetting works in CIDR. देखो जितने पार्ट्स में ब्रेक करेंगे ये 25 से इंक्रीज होके क्या हो गया 26. अब मैं आपसे बोलता हूं इसको मुझे फर्दर ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में, तो उसके लिए देखते हैं. So in order to create 4 subnet, I require 2 bits or I will borrow 2 bits from the host ID part. अभी मेरा ओरिजिनली होस्ट आईडी पार्ट में कितनी बिट्स हैं 7, तो जब मैं 2 बिट्स बोरो कर लूंगा तो होस्ट आईडी पार्ट में कितनी बिट्स बचेंगी 5, यानी कि हर एक सबनेट का साइज क्या होगा 2 raised to the power 5. अगर मैं इसको फर्दर ब्रेक करता हूं, ये एक सबनेट का साइज क्या है मेरा 64. मैं फर्दर ब्रेक करूंगा इसको हाफ में डिवाइड करूंगा तो 32 बन जाएगा, यानी कि 2 raised to the power 5. ओके, so if I break इसको फिक्स कर देते हैं हम 0 0 0 1 1 0 and 1. ओके, तो नेक्स्ट 6 बिट्स मेरी क्या बनेगी, सीधी सी बात है 1 2 3 4 5 6, sorry 5 bits, next 5 bits. Okay, then 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Okay, so last IP address, starting IP address क्या जाएगा फर्स्ट सबनेट में 0 से कहां तक 31 तक. ये जाएगा आपका 32 से 63 तक. ये जाएगा आपका 64 से 95 तक और ये जाएगा 96 से 127. हाँ 30 वगैरह हो जाएगा, यस 127. सो कोई डाउट. और स्लैश कितना जाएगा इसमें, मास्क वुड बी स्लैश भाई 2 हमने रिजर्व कर दी है ना, तो ये मेरी सबनेट आईडी में चली गई 2 बिट्स, ये 2 बिट्स भी, ये 2 बिट्स भी और ये 2 बिट्स भी. तो स्लैश 25 + 2 is 27 स्लैश 27
/27/27. Okay, so that is subnetting in CID. That is subnetting in CID. अब हम देखते हैं VLSM कैसे होता है CID का. It is variable length subnet mask. Okay, so I would consider the same question. In this scenario, I want to divide this network in two parts. The first part and the second part would be divided into again two parts. Okay, so यहाँ पर वही चीज करेंगे. इसकी पहले बिट 0 फिक्स कर दिया और नेक्स्ट कितनी बची 6 बिट्स 6. यहाँ पर हमने इस पार्ट के लिए फर्स्ट बिट का रिजर्व की 1 और यहाँ पर भी 1. Okay, for this part we are reserving the bit is 0 and this part we are reserving the bit as 1. अब इन दोनों में आइडेंटिफिकेशन करने के लिए डिफरेंशिएशन करने के लिए यहाँ मैं 0 करता हूँ फिक्स और यहाँ पर 1. नाउ रिमेनिंग आर 5 बिट्स 1 2 3 4. ये यहाँ पर रेंज हम फाइंड करेंगे. सो 0 सारी वैल्यू एक बार 0 रखेंगे 6 बिट्स को और एक बार सारे 6 बिट्स को 1 रखेंगे. तो रेंज वुड बी 0 से 63. यहाँ पर if I put 0 in all 5 positions तो वैल्यू क्या बनेगी 64 and 1 in all 5 position तो वैल्यू क्या बनेगी 64 95. ओके, यहां पर 1 1 तो यहां पर बनेगी 96 और इट इज 126. ओके, यहाँ पर जो हम स्लैश यूज करेंगे या मास्क यूज करेंगे, सीधी सी बात है मैंने यहाँ पर एक बिट को कंज्यूम किया, यहाँ पर हम SID पार्ट में 2 बिट्स को कंज्यूम करेंगे. तो यहाँ पर जाएगा /26 और यहाँ पर जाएगा दोनों जगह /27. इसको हम दूसरे वे में भी ले सकते हैं. देखो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आता है, सपोज there is one organization that want to divide or that want to create subnet of size suppose 64 IPs or 64 hosts, subnet of size 32, subnet of size 32. ओके, तो आपने पहला किस में ब्रेक दिया है वी डोंट नो. तो यहाँ पर एक सिनेरियो ये भी बन जाएगा. ओके, यहाँ पर पहले 0 से 31, 32 से 63, 64 से 1/26/27/27. Okay, so this is how VLSM and subnetting works in CIDR. Any doubt? This is how subnetting works in CIDR. Yes, Ravi, any question? If any doubt or issue, type your doubt or issue. I'm loving it. Yeah, you may speak. सर वो मतलब सर नीचे वाला नहीं दिख रहा था सर. ओके, तो वो टाइप ही कर देते हैं.
अब तो क्या मैंने अभी कर दिया। ओके सो नीचे वाला ये था, तो मैं बना देता हूँ जल्दी से। इसको हम ऐसे ले सकते हैं। ओके सो 0 से 31, 32 से 63, 64 से 127, और यहाँ काम करेगा आपका /26, यहाँ होगा /27/26। हम ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं, राइट? ओके सो नेक्स्ट इज एक सिनेरियो मैं आपको देता हूँ। Give you one scenario. Okay, suppose we have a network, and in this network we have station A, we have one more station, station B suppose, we have one router, and to some distance network we have one more station. Okay. So the question is, A knows its own IP address, and A knows its own subnet mask. Okay. Now suppose A wants to transfer some data to B. A wants to transfer some data, some packet to B. So A को क्या पता होगा? A को क्या पता होगा? सर नेटवर्क आईपी पता है। A का, B का, भाई B को मुझे एक पैकेट सेंड करना, तो मुझे क्या पता होना चाहिए B का? नेट आईपी एड्रेस। IP address, very good. Okay. So A should know the IP of B. क्या A को B का सबनेट मास्क पता होगा? सोच के बताओ जरा। क्या A को B आईपी का एड्रेस पता होगा सर तो सबनेट मास्क तो पता ही होगा। बच्चे? जब आईपी एड्रेस पता होगा तो सबनेट मास्क तो पता ही होगा सर। नो 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 नो, अभी ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। पहली चीज ये याद रखो, कभी भी सेंडर को डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस पता होता है बस। क्योंकि अगर सबनेट मास्क पता हो जाएगा, आप ये समझो, तो मुझे ये पता लग जाएगा कि किसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर भी मैं डेटा सेंड कर रहा हूं, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने सब नेटवर्क है, और एक तरह से मुझे उनका आईपी पैटर्न पता चल जाएगा, जो कि रिवील नहीं होना चाहिए। मैंने बताया था आपको पहली चीज, सबनेटिंग एक तरह की सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। तो हमेशा सोर्स को डेस्टिनेशन का आईपी पता होगा जस्ट। ओके, सोर्स डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट द सबनेट मास्क। अब दूसरा क्वेश्चन, जब A को B का आईपी एड्रेस पता है, सपोज अब A को बिल्कुल आइडिया नहीं वेदर द B इज प्रेजेंट इन इट्स ओन नेटवर्क या फिर B किसी दूसरे नेटवर्क के अंदर प्रेजेंट है, या एक तरह से ऐसा समझो, A को बिल्कुल आइडिया नहीं वेदर B इज प्रेजेंट इन इट्स ओन सब नेटवर्क या B किसी दूसरे सब नेटवर्क के अंदर प्रेजेंट है। जैसे कि अभी हमने पार्टीशन बनाया था, क्या था? पहली रेंज क्या थी? पहली रेंज मेरे पास मान लो एक सब नेटवर्क ये है, जिसके अंदर 0 से लेके 63/26 काम कर रहा है, और यहां पर 64 से लेके /127 है, और ये भी
26 पर काम कर रहा है। अब यहां पर हाउ द ए विल कम टू नो कि बी इज प्रेजेंट इन इट्स ओन सब नेटवर्क या फिर बी किसी दूसरे सब नेटवर्क में प्रेजेंट है। तो ए ये कैसे आइडेंटिफाई करे? बाय जस्ट सीइंग द आईपी एड्रेस ऑफ आईपी एड्रेस ऑफ बी। तो ए सबसे पहले क्या काम करेगा? इट विल मैंने आपको राउटिंग समझाई थी थोड़ी बहुत। सबसे पहले ए को अपना आईपी एड्रेस पता है और सबनेट मास्क पता है खुद का। It will perform the AND operation between its own IP and between its own subnet mask. दोनों के बीच में एंडिंग करने के बाद जो भी आउटपुट आएगा वो एक नेटवर्क एड्रेस आएगा। That is the network address of A with respect to the A. That is network address of A किसके रेस्पेक्ट में है? जो इंफॉर्मेशन ए के पास है। ए फिर दूसरा काम फिर से क्या करेगा? इट विल परफॉर्म द एंड ऑपरेशन ऑफ सबनेट मास्क ऑफ ए विद द आईपी एड्रेस ऑफ बी, और वो अगेन एक नेटवर्क एड्रेस कैलकुलेट करेगा ऑफ बी दैट इज नोन टू इट, ऑफ बी दैट इज नोन टू इट। अगर ये दोनों वैल्यू सेम आ जाती है, इसका मतलब क्या होगा? दोनों का नेटवर्क सेम है, ए का भी और बी का भी, यानी कि बी इज प्रेजेंट हियर। और अगर ये दोनों वैल्यू अनइक्वल आती है, इसका मतलब क्या होगा कि बी किसी दूसरे सब नेटवर्क के अंदर प्रेजेंट है। अभी इसको हम एग्जांपल के साथ देखते हैं। बी किसी दूसरे सब नेटवर्क के अंदर प्रेजेंट। ओके, इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो 200.1.2.10 आईपी ऑफ ए में मान के चल रहा हूं 200.1.2.10 और मैं सबनेट मास्क उसको एक्सपेंड करके मैं लिख रहा हूं ऑफ ए दैट इज 255.255.120 और आईपी ऑफ बी 200.1.2.1 मान के चलना। ओके, अब वही काम करेंगे हम, अभी बताया था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एड दीज टू नंबर्स। नीचे कर देता हूं 200.1.2.10 और 255.255.128 128 को थोड़ा सा एक्सपेंड करके मैं लिख रहा हूं और इसका भी लास्ट वैल्यू को एक्सपेंड करके लिख रहा हूं। ओके, 10 क्या बनेगा? 41010 दैट इज 10। 128 क्या बनेगा? 1 फॉलोड बाय 7 नंबर ऑफ वंस। नाउ अगर मैं एंड बिटवाइज एंड परफॉर्म करता हूं दोनों के बीच में, यहां पर क्या आएगा? देखो मैंने बताया था आपको 255 से एंड परफॉर्म करोगे किसी भी नंबर का 200 आएगा। अगेन 255 से एंड परफॉर्म करोगे किसी भी नंबर का नंबर होगा। अगेन 255 का एंड करोगे 2 के साथ 2 विल कम। ओके, अब एंडिंग करते हैं 1 0 0 ही आएगा। ओके, ये सारी वैल्यू 0 ही आती है। सो अकॉर्डिंग टू ए का नेटवर्क एड्रेस क्या है? 200.1.2.0। अकॉर्डिंग टू ए का नेटवर्क एड्रेस क्या है? 200.1.2.0।
अब वो सेम काम बी के लिए करें। ओके नीचे कर देता हूं 200.1.2 इसको एक्सपेंड कर देता हूं 130 इज 128 प्लस 2 ओके 1 ओके सो दैट इज 130 और इसी को एक्सपेंड करेंगे 255 और 255 और 255 not 1 followed by 7 numbers यहाँ पर क्या आ रहा है अगेन 200.1.2 यहाँ पर आप करोगे एंडिंग परफॉर्म तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे 128 यानी कि 1 फॉलोड बाय सारी वैल्यू 0 ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी 1 ओके सो अकॉर्डिंग टू ए बी का नेटवर्क एड्रेस क्या आ रहा है 200.1.2.128 मतलब B is not present in its network. B किसी दूसरे नेटवर्क या सब नेटवर्क के अंदर प्रेजेंट है तो सीधी सी बात है पैकेट को वो राउटर को सेंड कर देगा रूट करने के लिए ये लोकली प्रेजेंट नहीं है B is not locally present ओके दैट्स व्हाई ये पैकेट को कहां ट्रांसफर करेगा टू द राउटर अब ये राउटर का काम है इसको आगे से आया समझ में क्वेश्चन यस सर ओके नेक्स्ट अगर मैं इसमें थोड़ा चेंज करता हूं देखते हैं फिर क्या वैल्यू आएगी मैं इसको कर लेता हूं 69 अब मैं वैल्यू क्या ले रहा हूं .1.2.69 जरा आप चेक करो आईपी ऑफ ए तो चेंज नहीं होगा वो तो यही रहेगा मैंने आईपी ऑफ बी चेंज कर दिया क्या कर दिया उसको 69 कर दिया ओके हाँ अब बताओ जरा मुझे आईपी ऑफ बी इज 69 अब बताओ मुझे आंसर क्या है Is what 64 plus 5 है ना 64 plus 5 64 कैसे बनेगा 0 1 0 0 0 1 0 that is 69 अगर मैं एंडिंग परफॉर्म करता हूं इनके बीच में तो सीधी सी बात है 200.1.2 ये वैल्यू क्या आएगी 0 0 0 सारे तो इस सिनेरियो में हमने क्या पाया नाउ B is present in the same network that is of A देखो दोनों का नेटवर्क एड्रेस सेम आ गया अब A राउटर को सेंड नहीं करेगा B को डायरेक्टली डेटा सेंड ओके यस सर क्लियर हुआ एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको असाइनमेंट के लिए आप लोग उसको चेक करके बताना मुझे
क्लास चल रही है। बाकी